कल जो राह में इत्तिफाक कर ले, कल जो राह में इत्तिफाक कर ले, तुझे अजरो तमन्नाओं शर्मा गए, तुझे अजरो तमन्नाओं शर्मा गए। मुस्कुरा रास्ता छोड़ दो, मुस्कुरा के रास्ता छोड़ दो। हम गुजर रहे हैं, हम अपने घर जाएंगे, हम गुजर रहे हैं, हम अपने घर जाएंगे। प्रीत मोहब्बत की इस भरोसे पे हरे कृष्ण।
તો ભગવાન પૂતનાને મુક્તિ આપી. આ પૂતના કોણ છે? પૂત એટલે પવિત્ર, પૂતના જે પવિત્ર ના હોય પણ ભગવાનના સ્પર્શથી જે પવિત્રતાને પ્રાપ્ત કરતી હોય એને પૂતના કહેવાય. અને રાજા બલિની પુત્રી છે રત્નમાલા. પૂર્વ જન્મમાં જ્યારે ભગવાન વામન આવ્યા તો વામનને જોઈને, વામનનું સ્વરૂપ એટલું નાનકડું ને સુંદર જોઈને મનમાં થયું કે આ મારું બાળક હોય અને એનું દુગ્ધપાન કરાવું, એવો ભાવ હૃદયમાં ઉત્પન્ન થયો. પણ પછી રાજા બલિને છલવા લાગ્યા, ઠગવા લાગ્યા તો ક્રોધ આવી ગયો અને ક્રોધમાં કહે છે કે એને તો ઝેર આપીને મારી દેવું જોઈએ. એટલે ભગવાન એમનો દુગ્ધપાન પણ કર્યો અને એમનો ઝેર પાન પણ કર્યો. એવી રીતે આ પૂતનાને ભગવાન મોક્ષ આપ્યું છે. ભગવાન રામનું જીવન ચરિત્ર જ્યારે આપણે જોઈએ તો ભગવાન રામ મર્યાદા પુરુષોત્તમ હતા અને ભગવાન કૃષ્ણ લીલા પુરુષોત્તમ છે. તો ભગવાન રામ અને કૃષ્ણમાં સામ્યતા ઘણી છે. આપ દેખો 14 વર્ષની અવસ્થામાં વિશ્વામિત્રજી એમને લઈ ગયા કે તમારે વનમાં આવવું છે મારી સાથે અને મારા યજ્ઞનું રક્ષણ કરવું છે અને ત્યાં જેટલા પણ રાક્ષસો છે એમનું હનન કરવું છે. તો 14 વર્ષની અવસ્થામાં ભગવાન રામને વિશ્વામિત્રજી રાજા દશરથ પાસેથી માંગીને લઈ ગયા. અને અહીંયા ભગવાન કૃષ્ણ છે તો એમનો જન્મ કઈ તિથિમાં થયું? અષ્ટમી. અષ્ટમી તિથિના દિવસે કૃષ્ણ ભગવાનનો જન્મ થયો અને 6 દિવસ સુધી નંદોત્સવ ચાલ્યું અને પૂતના છઠ્ઠા દિવસે આવી એટલે એ દિવસે 14 હતી. અને એ 14ના દિવસે તો એક જગ્યાએ ભગવાન 14 વર્ષની અવસ્થામાં છે અને એક જગ્યાએ 14ના દિવસે પૂતનાનું હનન કરે છે. અને બંને સ્વરૂપોમાં, રામમાં યા કૃષ્ણમાં, બંને સ્વરૂપોમાં પહેલા જે સ્ત્રી દૈત્ય છે એ સ્ત્રી દૈત્યને ભગવાન માર્યા છે. ત્યાં તાડકાને પહેલા માર્યું અને અહીંયા પૂતનાને પહેલા માર્યું. તો રામ અને કૃષ્ણમાં કોઈ દિવસ ભેદ હોતો નથી. ભેદ અમારી દૃષ્ટિમાં હોય છે. આપણે લોકો સંપ્રદાયના નામે ભેદ ઉભા કર્યા છે, બાકી રામ અને કૃષ્ણમાં કોઈ ભેદ નથી. આપણા જેટલા પણ 33 કરોડ દેવતા છે એમાં ભેદ દ્રષ્ટિ, અને જે ભક્તની ભેદ દ્રષ્ટિ હોય ભક્ત કહેવાય પણ નહીં. કેમ કે ભગવાન ભેદ દ્રષ્ટિ, ભગવાનને તો અભેદ કરવાનું છે. અભેદ એટલે એક. જે સૂર્ય બધાને પ્રકાશિત કરે, અહીંયા પ્રકાશિત કરે, શું અમેરિકામાં એ સૂર્ય જુદું હશે? યા ન્યુઝીલેન્ડમાં યા બીજા કઈ દેશોમાં આ સૂર્ય જુદું થવાનું છે? એ સૂર્ય સરખું જ છે. ટાઈમિંગ જરૂર જુદું થઈ શકે પણ સૂર્ય એવો ને એવો છે. તો કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે ભગવાનમાં કોઈ દિવસ ભેદ દ્રષ્ટિ રાખવી નહીં. વિડંબના એવી છે કે આપણે ઠાકોરજીમાં બહુ ભેદ દ્રષ્ટિ રાખી છે. આપણે આપણા જીવનના અભેદને મિટાવવાનું છે પણ આપણે એવા થઈ ગયા કે આપણે ઠાકોરજીમાં ભેદ કરવા લાગ્યા. ઘણી જગ્યાએ પધરાવણી થાય એટલે હું જોઉં ત્યાં ઠાકોરવાડી હોય તો ઘણા લોકો કહે છે કે મારી મમ્મીને ભગવાન કૃષ્ણમાં વધારે ભાલ છે, વધારે પ્રેમ છે એટલે એમને લાલજીની સેવા કરવાની. મારા પપ્પા હનુમાનજીને વધારે માને એટલે હનુમાનજીની સેવા એમની. મારા ભાઈ મહાદેવમાં માને એટલે મહાદેવ એમના. મારી બેન સાંઈબાબામાં માને એટલે સાંઈબાબા એના. તો આપણે જે ભગવાન છે ભગવાનમાં કેટલા બધા ભેદ કરી દીધા. એ શીખવાનું હતું કે મારે અભેદ દ્રષ્ટિ કેવી રીતે કેળવાની, શીખવાનું તો એ હતું. પણ આપણે આપણા પોતાના ઘરમાં ભગવાનના જુદા જુદું રૂપ પધરાઈને એમ ભેદ દ્રષ્ટિ કરી દીધી. તો ભગવાનમાં કોઈ દિવસ ભેદ કરવાનું જ ના હોય. भगवान में कभी भी भेद नहीं करना चाहिए, ये जरूर ध्यान रखें. भगवत तत्व एक है. जैसे एक सूर्य है, सूर्य के नीचे कई सारे कलश रख दीजिए पानी के, उन सब में सूर्य का वही प्रतिबिंब दिखेगा. पर कहीं किसी घड़े में आप पानी हिलाए तो उतना ही सूर्य हिलेगा, बाकी के स्थिर रहेंगे.
तो वस्तुतः सूर्य एक है, तत्व एक है, पर अनेक कलशों में हम लोगों ने देखा तो वो अलग अलग प्रतीति होती है, अलग अलग जगह अलग अलग स्वरूप में प्रतीति होती है, तत्व दृष्टि से एक ही है। इसलिए संप्रदाय के नाम से कभी भी विवाद नहीं होना चाहिए। मैंने पहले दिन आपको बताया था कि संप्रदाय क्या है। संप्रदाय का अर्थ होता है भगवान से संबंध स्थापित कर लेने की कला को कहते हैं संप्रदाय। जैसे कोई व्यक्ति हो, उसके लिए कोई उसके ही घर का किसी के लिए वो चाचा है, किसी के लिए मामा है, किसी के लिए मौसा है, किसी के लिए भाई है, किसी के लिए पुत्र है, वैसे ही भगवान में किसी ने अभेद का संबंध स्थापित कर लिया तो वो शंकराचार्य जी का अद्वैत हो गया। किसी ने चिर विशिष्ट ब्रह्म का संबंध स्थापित कर लिया तो वो रामानुजाचार्य जी का विशिष्टाद्वैत हो गया। किसी ने शुद्धाद्वैत का संबंध स्थापित कर लिया तो वो पुष्टि मार्ग हो गया। किसी ने द्वैताद्वैत का संबंध स्थापित कर लिया तो वो मध्वाचार्य हो गए। ऐसे अनेक प्रकार से भगवान से संबंध स्थापित कर लेने की कला ही तो संप्रदाय है, उससे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। पर हम लोग ये संप्रदाय रूपी पगडंडी पर ही पड़े रहते हैं और धर्म रूपी राजमार्ग को छोड़ देते हैं। ये संप्रदाय है, पगडंडियां हैं, ये हमारे घरों से निकलने वाली, हमारे हृदय के मार्ग से निकलने वाली एक पगडंडी है। इस पगडंडी पर चलकर हमको धर्म रूपी राजमार्ग पर, हाईवे पर आ जाना है और वो हाईवे हमारा गंतव्य निश्चित करता है कि हमें कौन सी जगह जाना है। तो आवश्यकता है कि हमें इस धर्म रूपी राजमार्ग को, अगर मान लीजिए आप यहां से तीसरी मंजिल पर जाना चाहते हैं और आप सीढ़ी से चढ़े, तो सीढ़ी से चढ़े पर जब तक सीढ़ी छोड़ोगे नहीं तब तक तीसरी मंजिल पर पहुंचोगे कैसे? इसलिए जब आपको तीसरी मंजिल पर, आपको धर्म रूपी तीसरी मंजिल पर पहुंचना है तो ये सीढ़ी, संप्रदाय रूपी जो सीढ़ी है उसको छोड़ देना पड़ेगा। इसलिए आवश्यकता है, ये केवल मार्ग है। जैसे कोई व्यक्ति कान ऐसे पकड़ता है और कोई व्यक्ति कान ऐसे पकड़ता है, पकड़ना तो कान ही है, थोड़ा घुमा के हो जाएगा। तो इसी संप्रदाय को समझे। और बड़ी सुंदर बात अखंडानंद सरस्वती जी ने कही है कि भिक्षुर क्वास्ति बलेर्मखे पशुपते किम्नास्त्यशौ गोकुले मुक्ते पन्नग भूषण सखि सदा सेते च तस्योपरि आर्ये मुंज विषाद मासु कमले नाहं प्रकृत्या चला इत्थं श्री गिरिजा समुद्र सुतयोः संभाषणं पातु वः। अखंडानंद सरस्वती जी ने बड़ी सुंदर बात कही है कि एक समय लक्ष्मी लोक में, एक समय वैकुंठ में लक्ष्मी जी बैठी हैं और लक्ष्मी जी के मन में विचार आया कि कई दिन हो गए मैं पार्वती से मिली नहीं। अब सखियां हैं तो कहा कई दिन हो गए मैं पार्वती से मिली नहीं, तो जाकर उससे मिलूं। तो ऐसा सोचकर अपने वैकुंठ से निकली हैं गरुड़ जी के ऊपर और पहुंची है कैलाश लोक में पार्वती जी से मिलने। जब कैलाश लोक पहुंची तो कैलाश लोक के द्वार को खखड़ाया है, खटखटाया। अंदर से द्वार खुला, द्वारपालिका आई और देखा माता लक्ष्मी पधारी है। बड़ी अभिभूत हुई, दौड़ कर गई है और माता पार्वती को सूचित किया कि वैकुंठ से माता लक्ष्मी जी आपका दर्शन के लिए आई हैं। यहाँ पर पार्वती जी ने जब सुना तो वो भी बड़ी प्रसन्न हुई कि माता लक्ष्मी मुझसे मिलने आई, बड़ी प्रसन्न हुई और उनकी अगवानी करने के लिए माता पार्वती स्वयं आई। अब दोनों माता पार्वती और माता लक्ष्मी जी बड़े आनंद से मिल रही है, पर लक्ष्मी जी के हृदय में एक भाव आया कि मैं इतने दिनों बाद अपनी सखी से मिल रही हूं तो थोड़ा मजाक करती हूँ, थोड़ा विनोद करती हूँ। तो लक्ष्मी जी पार्वती जी से कहती है कि भिक्षुर क्वास्ति, अर्थात तुम्हारा पति जो भिक्षु के वेश में घूमता है, शिव जी भिक्षु के वेश में रहते, तो तुम्हारा जो पति है वो भिक्षु क्वास्ति, भिक्षु के वेश में घूमने वाला तुम्हारा पति कहाँ है? तो यहाँ पार्वती जी को सबके सामने, दासियों के सामने, व्यक्ति अकेले में तो आलोचना हो, अकेले में तो कोई बात बताई जाए तो सहन कर ले, पर सबके सामने यदि किसी की आप आलोचना करो, किसी को बताओ तो उसको भले सही बात हो सहन नहीं होती, वो अपनी हार नहीं मानेगा। तो माता पार्वती जी को ये बड़ी बात लगी कि मेरे पति को सबके सामने भिक्षुर क्वास्ति, भिक्षु कह दिया। तो शास्त्र ऐसा कहता है कृते च प्रतिकर्तव्यम एष धर्मः सनातनः, जो व्यक्ति आपके साथ जैसा करे उसको वैसा ही जवाब दो। तब माता पार्वती कहती है तुम गलत आ गई,
तुम यदि भिक्षु को ढूंढने आई हो तो तुम गलत आई हो, क्योंकि भिक्षु यहाँ नहीं है। भिक्षु तो राजा बलि का यज्ञ चल रहा था, वहां पर वामन बनकर गया है और भीख मांगने के लिए गया है, तो भिक्षु को ढूंढने आई हो तो यहाँ नहीं है। तो वामन बनकर कौन गया था? विष्णु गए। तो विष्णु भगवान भिक्षु हुए, तो 3 पैर भूमि मांगी। तो भिक्षु और पास थी, ऐसा पूछा तो कहा अगर तुम भिक्षु को ढूंढने आई तो तुम गलत आ गई। अगर भिक्षु को ढूंढना है तो तुमको बलि राजा के यज्ञ में जाना पड़ेगा, वहां पर वामन है बटुक, वो 3 पैर भूमि मांगने के लिए वहां गया है, तो भिक्षु वहां मिलेगा। और फिर कहते हैं पशुपति को आस्ती, दूसरा प्रश्न किया कि चलो भिक्षु छोड़ो, भिक्षु मेरा पति होगा, पर तुम्हारा पति जो पशुपति है वो कहाँ है, जो अपने साथ पशुओं को रखता है, नंदी को रखता है, सबको रखता है, जिसकी मोटी बुद्धि है, ऐसा पशुपति को आस्ती। जब पार्वती जी ने सुना तो पार्वती जी ने फिर से बड़ा विवेकपूर्ण उत्तर दिया कि तू पशुपति को ढूंढने आई तो भी गलत आ गई। किम नास्ति असौ गोकुले, वो गोकुल में गाय चरा रहा है, वो यहाँ नहीं है, वो गोकुल में गाय चरा रहा है। तो तुमको उसे यहाँ नहीं ढूंढना चाहिए, गोकुल जाना चाहिए। फिर कहते हैं मुक्ते पन्नग भूषण तो अस्ति, हे मुक्ते, हे प्रिय, पार्वती जी को कहते हैं तुम्हारा पति जो पन्नग कहते हैं सर्प को, तुम्हारा पति जो सर्पों के आभूषण को धारण करता है, जिसके लिए सर्प ही आभूषण है, मुक्ते पन्नग भूषण सखी सदा, ऐसे सर्पों के आभूषण को धारण करने वाला तुम्हारा जो पति है वो कहाँ है? तब पार्वती जी कहती है तुम फिर भी गलत आई। सहते से तस्योपरि, वो वैकुंठ में से सैया पर सोया है, तो भी तुम गलत आ गए। वो वैकुंठ में से सैया पर लेटा है, तो पन्नग तो सबसे बड़ा पन्नग तो उसके पास है। अब यहाँ पर अब लक्ष्मी जी ने अपनी मर्यादा को भंग कर दिया, क्योंकि आगे तीसरा चरण जो है उसमें कहा है काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमता। बुद्धिमान व्यक्तियों का समय कैसे जाता है? अच्छे सुंदर साहित्यों को, सदग्रंथों को पढ़कर, काव्य शास्त्र से विनोद कर उनका समय निकलता है। और हमारा समय कैसे जाता है? तारी मारी करवा में, बराबर। तो विद्वानों का समय कैसे जाता है? सुंदर भगवत चर्चा करके, विनोद करके निकलता है। तो यहाँ पर लक्ष्मी जी ने अपनी मर्यादा को भंग करके कहा है कि आर्ये मुंच विषाद मासु कमले, कि हे पार्वती, हे आर्य, भारत के पार्लियामेंट में ऐसा नियम है कि जो पति तुमको पसंद नहीं आए उसको तुम तलाक दे सकती हो, जो पति तुमको पसंद ना आए उसको डिवोर्स दे सकती हो, क्योंकि तुम्हारा पति पशुपति है, तुम्हारा पति भिक्षु है, तुम्हारा पति पन्नग भूषण है। तो यदि तुम्हें अपना पति पसंद नहीं हो तो भारत के पार्लियामेंट में ऐसा नियम है, या कहीं के भी पार्लियामेंट में, कि जो नहीं पसंद आए उसको डिवोर्स दिया जा सकता है। तो आर्य मुंच विषाद मासु, हे आर्य, ये जो तुम्हारा विषाद रूप पति है इसको मुंच छोड़ दो। तब पार्वती जी बड़ा विवेकपूर्ण उत्तर देती, कमले नाहम प्रकृत्या चला, हे कमले नाहम प्रकृत्या चला। मेरे यहाँ पर ये बताइए कि पार्वती जी के पिता का नाम क्या है? कौन दक्ष बोला? रेखा में मैंने समझाएगी, तब मैं बोला। तो यहाँ पर हिमालय जो है, पर्वत हिमालय, वो पार्वती जी के पिता है। तो पर्वत का एक नाम है अचल, और अचल का मतलब क्या होता है? जिसकी प्रकृति चंचल ना हो उसे अचल कहा जाता है। तो यहाँ पर पार्वती जी कहती है कमले नाहम प्रकृत्या चला, हे लक्ष्मी, हे कमले, नाहम प्रकृत्या चला। मेरे पिता जो है वो हिमालय है और उनका नाम अचल है। तो अचल का मतलब होता है स्थिर, यानी एक बात पर डटे रहना। तो मेरा स्वभाव भी मेरे पिता जैसा है, मैं भी कभी चंचल नहीं हूं। पर तुम्हारा स्वभाव कैसा है
कि तुम आज धन्ना लाल के जेब में, कल पन्ना लाल के जेब में, कल किसी और के जेब में, तो तुम्हारा स्वभाव चंचल है, तुम कहीं नारायण को छोड़ मत देना। आर्ये मुंज विषादु कमले नाह प्रकृत्या चला, तो इत्थम श्री गिरिजा समुद्र सुतयोः संभाषणम पातु वः। इस प्रकार जो गिरिजा और समुद्र सुत, समुद्र सुता कौन है? लक्ष्मी। गिरिजा कौन है? तो उनका जो संभाषण है वो पातु मः, पातु वः, पातु नः, हम सभी की रक्षा करें। तो जहां पार्वती जी और लक्ष्मी जी ऐसे काव्य शास्त्र विनोद के द्वारा अपने आप को मिलन कर रही है, मिला रही है, संप्रदाय की इन छोटी छोटी बातों में शैव और वैष्णव करके झगड़ती नहीं है, तो फिर हम लोग भक्त परंपरा से जुड़कर क्यों अपने अपने संप्रदाय के लिए इतना लड़ झगड़ रहे हैं? आज हम लोग बट गए हैं, विचार कीजिए। आज हम लोग संप्रदाय के टुकड़ों में ऐसे बट गए हैं कि जब हिंदू संस्कृति के लिए और अपने राष्ट्र के लिए हमें खड़ा होना हो तो हम लोग एक साथ खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि संप्रदाय के नाम से हम अपने विचारों से, हम अपने चिंतन से, हम अपने भगवान से सब तरीके से बढ़ चुके हैं। तो हमें एक होना है और एक होकर इस संपूर्ण भारत में जो इस भारत का स्वरूप था, मूल भारत का वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखते हुए इसे पुनः एक रूप में स्थापित करना है, ये हमारा सभी का कर्तव्य है। इसलिए मैं कहूंगा कि आप लोग भी अपने घर में जाकर ये जो भेद दृष्टि है उस भेद दृष्टि को समाप्त करिए। हमने कैसा किया? हम लोगों ने भेद दृष्टि केवल भगवान में नहीं की, उनकी सेवा पूजा प्रकारों में भी कर दी कि आ ठाकुरजी ની આરતી ઊભી રહેશે અને આ ઠાકોરજીના દીવા એવા બેઠા રહેશે। આ ઠાકોરજીને એવી રીતે કરવાનું, અહીં એટલે સ્વાભાવિક છે ઘણી બધી પદ્ધતિઓમાં ભેદ છે, બધું એમાં જઈશું તો સ્વાભાવિક છે ઘણા બધા લોકોને સારું પણ નહીં લાગે, પણ આવશ્યકતા છે કે આપણે એટલું સમજવાનું છે કે આપણા ઠાकुर, આપણા પરમાત્મા એક છે, સમદૃષ્ટિ રાખવાનું। यद्यपि भगवान એટલે તો કહેવાયું છે કે અકામઃ સર્વ કામો વા મોક્ષ કામ ઉદારધિ तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषः परम। अकाम या सकाम होकर मात्र और मात्र भगवान की भक्ति कीजिए और यजेत पुरुषम परम, ऐसे भगवान जो यज्ञ स्वरूप है उनकी उपासना करते रहिए। भगवान तो प्रीतिकारक हैं, उनको पाना बड़ा आसान है, पर हम लोग बट गए इसलिए नहीं पा रहे, इसलिए सुंदर भाव का वहां निर्माण किया है। और यहाँ पर एक के बताया है कि चाहे राम बनकर चाहे श्याम बनकर, भगवान राम हो या श्याम हो, कोई भेद नहीं है। पर हम लोग जब तक ये दृष्टि भेद हमारे जीवन से निकालेंगे नहीं, तब तक स्वाभाविक है कि ये भेद हमें दिखाई देगा। तो ऐसा सुंदर भाव हम लोग प्रस्तुत करेंगे। बोलता 3 घंटे में बोल रहा हूँ, गला इसका सूखता है। यहाँ बैठा केवल दक्षिणा लेने आया है।